Okay, fine, guys. So let's begin for the session. Very warm good morning and welcome for JavaScript and React part. So we were discussing with respect to the JavaScript, right? हम JavaScript पे काम कर रहे थे और JavaScript के fundamentals के टॉपिक हमने देखे थे. Okay, we have seen JavaScript fundamental topic. तो आज के सेशन को हम वही से आगे फॉरवर्ड करते हैं. ओके, लेट्स फॉरवर्ड दैट सेशन एंड टुडे इज आवर डे 6. ओके, सो जस्ट आई विल से डे 6. मैंने गिटअप की लिंक आपको दे दी है ओवर अ प्रोजेक्ट. So please follow the code, okay? So let's open the project in VS Code. So in the last session, we have seen some of the topics, okay? हमने कुछ topics discuss किए थे. We have just seen the couple of topics in the last session. Okay, तो उसी चीज को अभी आज forward करते हैं. Let's forward those topics, okay, over a part. So in the last session, we have seen that what is a different types of functions are, okay? Functions के type हमने देखे थे. And we are also seeing कि array क्या होता है. Okay, now in today's session we are going to see the methods of array. Okay, we are going to see methods of array. फिर object की methods देखेंगे, math method and date methods. Okay, so this is the flow how we are going to do the stuff. Okay, so let's create a file and let's see which are the math methods, sorry, which are the array methods with us. So I will just say array methods. तो मैं array methods.js नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगा and in that particular file we are going to roll with the code. Okay, तो उसके साथ हम workout करने वाले. Okay, so just I will copy all the necessary files and also I will copy the data also. Okay, तो ये अलग अलग methods है जो हम learn करने वाले हैं. Okay, and let's use this one. और हमारे पास जो कोड है मतलब जो स्टूडेंट की लिस्ट है हम वही यूज करेंगे. So let's copy that student list. Let's copy it and let's paste it over here. इसे paste कर देते हैं. Now the next step is that I'm having a student list, so just I will use console.log and let's print this student list. And I will just copy it, okay, over here. That's sorry, I will just call that file so that we can just make it open with VS Code. Okay, so let's do that one. Very good. So now just I will say inspect और यहाँ पे मैं inspect section open करूँगा. Okay, let's see the inspect section. Now the thing is that guys, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको array आएगा. Okay, so let's see that now I can see that कि जब मैं पूरा entire array यहाँ पे देख सकता हूँ. बट अगर मुझे सिर्फ एक ही सिंगल array की वैल्यू अगर चाहिए तो हम वो कैसे ले सकते हैं. जैसे मान लेते कि मुझे यहाँ पे नितिन का डेटा प्रिंट करना है. सो नितिन इज अवेलेबल ऑन इंडेक्स 2. नितिन जो है वो इंडेक्स 2 पे अवेलेबल है. सो here I can use a index value. So अगर मैंने ऐसा कहा कि like say if I just say like say student, just I will say var student and just I will say student और यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा student list of 0 तो सॉरी student list of 2 तो ये मुझे नितिन का डेटा देगा. It will give me a नितिन data. A simple and sober. Okay. So see I will get a individual नितिन्स data. तो अगर मुझे सिर्फ नितिन का नेम चाहिए तो यहाँ पे मैं डॉट नेम कर सकता हूँ. स्टूडेंट के बाद डॉट नेम करूंगा. दैट विल गिव मी अ स्टूडेंट नेम. सिंपल एंड सोबर. तो आपको अगर सिंगल स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड चाहिए तो आप इंडेक्स वैल्यू से वो रिकॉर्ड ले सकते हो. सो दिस इज व्हाट अ सिंगल स्टूडेंट इज. लेकिन अगर मान लेते हैं कि मैंने अगर सिंगल स्टूडेंट अगर नहीं मुझे अगर
सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए वन बाय वन. I just want all the record. I just want to read all the record of the student. तो अगर आपको सारे records अगर read करने हैं, in that case you need to use a read. You need to use a for each method. Okay? तो अगर आपको array के अगर सारे के सारे methods अगर चाहिए, सारे के सारे record चाहिए, तो आप for each method use करोगे. You will use a for each method. A simple and sober. Okay? A simple and sober. So you will just use that one. Okay? You will just use that one. You will just use that one. तो अगर यहाँ पे अगर मैंने लिखा console, if I just use like say array name, so that is going to be like say array. तो हमारा जो array वो है student list. So if I just student list dot for each, तो इसके अंदर आपको callback function मिलेगा. Callback function मतलब क्या? कल हमने देखा था that we can write a function definition without a name. Okay? तो ये जो callback function है, तो array की हर मेथड के अंदर आपको callback function मिलेंगे, जैसे कि for each है. तो इस फंक्शन के अंदर ये जो फंक्शन है फॉर ईच के कॉल के अंदर ये जो फंक्शन है इसमें आपको 3 पैरामीटर मिलते हैं. पहला पैरामीटर एरे की वैल्यू, दूसरा पैरामीटर एरे का इंडेक्स और तीसरा पैरामीटर खुद एरे मिलता है आपको. अभी हम इन लास्ट में कभी इंटरेस्टेड नहीं रहते बिकॉज हमें इंडिविजुअली वैल्यू चाहिए. तो अगर मैंने console.log अगर प्रिंट किया, इफ आई जस्ट प्रिंट द वैल्यू इन द लॉग, यू विल सी दैट कि वो प्रिंट हो जाएगा. सी, it will be get printed. It will be get printed. So typically we can print the data without any issue. हम डेटा प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल. तो अगर मान लेते मुझे अगर सारे कैंडिडेट के अगर नेम्स चाहिए तो मैं नेम्स यूज कर सकता हूँ डॉट नेम. इससे क्या होगा, हर एक कैंडिडेट का मुझे नेम ही मिलेगा. सी, अगर मान लेते कि मुझे हर एक कैंडिडेट का रोल नंबर चाहिए तो मैं रोल नंबर यूज कर सकता हूँ, मुझे रोल नंबर मिलेंगे. तो इसका मतलब क्या होता है गाइस कि हम कैंडिडेट का कैंडिडेट की इंडिविजुअल वैल्यू भी यहाँ पे ले सकते हैं. तो इसे ये लूप जैसा ही काम करेगा. बट बेसिकली लूप में और इसमें क्या डिफरेंस है कि जो फॉर ईच है इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं. जैसे फॉर लूप कैसा होता है, फॉर ओके उसके बाद क्या होती है, उसके बाद हम उसको इनिशियलाइज करते हैं जैसे कि वार इंडेक्स. हमें सेट करना पड़ता है इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा. फिर हम उसे कंपेयर करते हैं कि इंडेक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए जो भी हमारा एरे है. हमारा एरे का नाम क्या है, स्टूडेंट लिस्ट. उसके लेंथ से वो कम ही होना चाहिए हमेशा. एंड देन वी नीड टू यूज टू इंक्रीमेंट दैट इंडेक्स. तो हमें ये प्लस प्लस करना पड़ता है. तो एरे को अगर हमें लूप में अगर घुमाना है तो बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है. लेकिन एरे की जो फॉर ईच मेथड है इसमें आपको ये करना नहीं पड़ता. दैट इज अ गुड एडवांटेज ऑफ इट. ये उसका बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि आपको इसको करने की कोई जरूरत नहीं. ओके, सो it's a very cool thing which you can just use for the implementation. Okay, so this is how the for each will work. और इसका इंडेक्स भी आपको मिल जाता है. So you will get an index of a student. So if I save this, आपको इंडेक्स भी मिलेगा. See, हर एक कैंडिडेट का डिटेल्स प्लस उसका इंडेक्स मिलेगा. लाइक से 0 इंडेक्स 1 2 and 3 4 and so on. So this is what the for each method is used, and it is used to read the data. Yes, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है? सर इसमें नहीं है बट एक पूछना था मुझे. तो फॉर ऑफ करके कुछ एक और रहता है सर, उसका अपन यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं? हाँ, फॉर ऑफ ना. ओके, अभी फॉर ऑफ देखिए, एरे में टोटल 3 टाइप के फॉर होते हैं. सॉरी, जावास्क्रिप्ट में एक फॉर लूप होता है,
एक फॉर इन होता है और एक फॉर ऑफ होता है। ओके, फॉर ऑफ होता है। तो फॉरिन का सिनेरियो क्या होता है कि फॉरिन में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं दूंगा लाइक से वार ऑफ की। तो फॉरिन में आपको की मिलती है, की मतलब इंडेक्स मिलता है। ओके, एंड देन आपको इनके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे हमारे पास एरे है, सो दिस इज द वे हाउ यू विल डील विद दिस। ओके, तो अगर मान लेते कि इस इंडेक्स को अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट किया, एंड इफ आई ट्राई टू सी दिस वन, सो यू विल सी दैट कि मुझे यहाँ पे इंडेक्स मिलेंगे। ओके, फिर उस इंडेक्स को कॉल करके आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको फिर से वही लॉजिक यूज करना पड़ेगा, दैट स्टूडेंट लिस्ट ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको सेपरेट वैल्यू नहीं आएगी फॉरिन में, फिर आपको वही डेटा आएगा जो हम ऊपर प्रिंट कर रहे हैं, फॉर ईच में वही डेटा आएगा। अभी फॉर इन का एक लिमिटेशन ये होता है कि इसमें आपको वैल्यू डायरेक्टली मिलती नहीं, यू विल नॉट गेट अ वैल्यू डायरेक्टली। सो आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से यूज करनी पड़ेगी। उसी तरीके से फॉर ऑफ लूप होता है। फॉर ऑफ में क्या होता है, जैसे फॉरिन में वैल्यू आती है, वैसे फॉर ऑफ में आपको, सॉरी वैरिन में आपको इंडेक्स आता है, वैसे वेर ऑफ में आपको वैल्यू आती है। और ऑफ के बाद आपको ऑब्जेक्ट का नेम देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास एरे है, एरे इज ऑब्जेक्ट। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कैन डू। सो अगर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर किया तो मुझे वैल्यू आएगी। सो इफ आई सेव दिस, यू विल सी दैट कि मुझे यहाँ पे, अभी मैं बाकी कमेंट्स कर दूंगा, सो यू विल सी दैट आई विल गेट ऑल द वैल्यूज। बट इसका एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे आप इंडेक्स ग्रैब नहीं कर सकते, यू कांट ग्रैब द इंडेक्स। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका फॉर ईच, जिसमें इंडेक्स भी मिलता है आपको और वैल्यू भी मिलती है। तो अगर फॉरिन अगर आप यूज करोगे तो आपको इंडेक्स मिलेगा, फॉर ऑफ यूज करते हो तो आपको उसकी वैल्यू मिलती है, और अगर आप फॉर ईच यूज करते हो तो आपको वैल्यू और इंडेक्स मिलेगा। और एक डिफरेंस ये होता है कि ये जो फॉरिन और फॉर ऑफ होते हैं, तो ये बेसिकली ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, याद रखना है, बेसिकली दे यूज ऑब्जेक्ट्स। तो यस एरे सर। भी, एरे भी एक ऑब्जेक्ट है। और अगर फ्यूचर में जो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, जैसे लाइक से var obj इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, तो आप फॉर इन और फॉर ऑफ से इसे भी लूप में लगा सकते हैं। ओके, तो अगर आपको लूप में लगाना है तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसे फॉर ईच सपोर्ट नहीं करता है, बिकॉज फॉर ईच जो है वो स्पेशल एरे मेथड है, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट मेथड, रिमेंबर। ओके, सो ये लूप आप यूज कर सकते हैं, बट अगर आप एरे यूज कर रहे हैं तो आई विल हाईली रिकमेंड टू यूज दिस वन, बिकॉज इसमें दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। ओके, यस सर। इज इट क्लियर? पण सर ये कब यूज होते हैं, मतलब फॉरिन, फॉर ऑफ और फॉर, मतलब लेटेस्ट है कि कैसा आपको, मतलब आपका, हम लोग कैसे समझे कि इधर ये यूज होना हाँ चाहिए देखिए, जमलिंग। बहुत ही सिंपल होता है। अगर आप एरे यूज कर रहे हो और आपको एरे को लूप करना है, तो आप हमेशा फॉर ईच का यूज करोगे। ओके, इफ यू वांट टू रन द डेटा, ओके सर। ओके, प्रिंट द डेटा, रीड करना है, यह हमेशा होता है। ओके, ये दोनों यूज मत कीजिए, डोंट यूज इट, सिंपल एंड सोबर। और अगर आप रिएक्ट में अगर एरे को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, तो वही चीज अगर रिएक्ट है, रिएक्ट में अगर आपको एरे को यूज करना है, वो भी आपको लूप में उसे प्रिंट करना है। सॉरी गाइस, आपको लूप में अगर उसे प्रिंट करना है तो आप मैप मेथड का यूज करोगे, यू विल नॉट यूज फॉर ईच। समझ में आ रहा है? तो अगर यही चीज अगर रिएक्ट में है, यस। तो आप मैप मेथड यूज करोगे। वही चीज अगर आपका यहाँ पे, तो आप व्हाट यू विल डू,
You will simply use the loop. Simple and sober. समझ में आ गया? यस सर। ओके। यस सर। तो ये दो सिनेरियो होते हैं। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में एरे को अगर रीड करना है तो फॉर ईच। अगर मान लेते हैं कि मुझे रिएक्ट में अगर उसे रीड करना है तो मैप मेथड सबसे बेस्ट है, और वही मैं रिकमेंड करूंगा रिएक्ट के लिए, जो हम आगे चल के देखेंगे। हाँ, अभी आपके माइंड में अगर क्वेश्चन कि ये कब यूज करना, सो प्रोबेबली इफ यू बिलीव मी, मैंने कभी भी फॉर इन और फॉर ऑफ कभी यूज नहीं किए, नेवर, कभी भी यूज नहीं किए। ओके, सो इन माय लाइक से 7 years ऑफ एक्सपीरियंस मैंने कभी भी उसको यूज नहीं किया। ओके सर, बट वो लेट मतलब कुछ कुछ प्रोग्राम में दिखाई देता है कि ऐसा, तो नो वो नो, लेटेस्ट है कि पुराना वाला कुछ ऐसा है, देखिए मतलब बेसिक्स है एक कि। एक कोड करने के 4 से 5 तरीके होते हैं। अभी अगर यही डेटा अगर आपको रीड करना है तो मैं आपको मैप से भी रीड करके दिखा सकता हूँ। ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। एक कोड रन करने के 4 से 5 तरीके होते हैं, आपको एक ही तरीका आना चाहिए मिनिमम। ओके ओके, सर। दैट्स इट। हाँ, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं फॉर ईच यूज कर रहा हूं तो हमारे पास फॉर इन और फॉर ऑफ भी होता है। बट क्या डिफरेंस है? फॉर ईच एक स्पेशल एरे मेथड है। फॉर ऑफ जो होता है या फिर फॉर इन जो होता है, ये ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए रन होता है। तो एरे भी एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो करली ब्रैकेट होता है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इन्हें भी इटरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। बट जब भी यस आप सर। एरे यूज करोगे, हमेशा यही मेथड यूज करना। ठीक है? यस सर। यस। तो बहुत सारी जगह पे आपको बहुत सारे कोड में आपको मिल सकता है, बट गुड प्रैक्टिस इज टू गो विथ दिस। ओके, फाइन। So just I will comment it. Okay, fine. Okay, so now let's move towards the next method. तो अभी हमने देखा कि एरे को रीड कैसे किया जाता है। नाउ टेक एन एग्जांपल, मुझे एरे में कुछ डेटा पास करना है, जैसे कि मुझे एक रिकॉर्ड ऐड करना है। ओके, सो वी विल जस्ट सी हाउ टू ऐड अ रिकॉर्ड। तो चलिए फिर इसे समझते हैं कि रिकॉर्ड को कैसे ऐड किया जाता है। तो इफ आई वांट टू ऐड अ रिकॉर्ड, वी विल यूज अ पुश एंड अनशिफ्ट मेथड। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ये जो स्टूडेंट लिस्ट है, ओके, वी आर हैविंग आवर स्टूडेंट लिस्ट व्हिच आर प्रिंटेड ऑन द वेरी टॉप। तो मुझे अगर इसमें अगर डेटा ऐड करना है, जैसे कि मेरे पास एक नया स्टूडेंट है, लाइक से न्यू स्टूडेंट। ओके, एक नया ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, जैसे कि उसका नेम। ओके, जस्ट मैं सेम प्रॉपर्टी लूंगा, आई डोंट वांट एनी कॉन्फ्लिक्ट विद इट। जस्ट आई विल से दैट कि मेरे पास उसका नेम है, जैसे कि सागर, रोल नंबर है 29 और मार्क्स है लाइक से 50। तो मुझे अगर ये डेटा ऐड करना है, तो डेटा ऐड करने के लिए हम सबसे पहले मेथड यूज करेंगे स्टूडेंट लिस्ट डॉट पुश। तो पुश के अंदर आप ये ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। पुश पुश के अंदर आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ओके, वो डेटा ऐड हो जाएगा, लाइक से स्टूडेंट लिस्ट। सो यू विल सी दैट कि प्रीवियसली 5 रिकॉर्ड थे, अभी मेरे पास 6 रिकॉर्ड है। तो जो पुश ऑपरेशन होता है वो एरे के एंड में डेटा ऐड करता है। इट विल ऐड डेटा एट द एरे एंड। तो अगर मुझे एरे के स्टार्टिंग में अगर डेटा ऐड करना है, तो हम पुश की बजाय अनशिफ्ट यूज करेंगे। तो वो डेटा बिगिनिंग में ऐड होता है, वो डेटा सबसे स्टार्ट में ऐड होगा। देखिए सागर सबसे स्टार्ट में ऐड है अभी। तो इन दोनों में से कौन सी यूज करते हैं हम सबसे ज्यादा? सो हम पुश ऑपरेशन यूज करते हैं। सो पुश कैन ऐड
can add data at the end of array, और वही जो अनशिफ्ट होता है, it can add or it adds data at the beginning. ये डेटा बिगिनिंग में ऐड होता है. ओके, तो अगर आप पुश मेथड यूज करते हैं तो पुश मेथड डेटा एंड में ऐड करेगा, और अगर आप अनशिफ्ट यूज करते हैं तो वो डेटा बिगिनिंग में ऐड करेगा. So these are the typical two methods which we use, जिसमें से पुश सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, बिकॉज डेटा हमें एंड में ऐड करना होता है. बहुत ही रेयर केस होती है जहां पे डेटा हम बिगिनिंग में ऐड करते हैं. ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो सर. No, sir. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड अ डेटा. अगर मान लेते कि मुझे अगर डेटा डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं हम? सो टू डिलीट द डेटा वी आर हैविंग, टू डिलीट अ डेटा वी आर हैविंग, टू डिलीट अ डेटा, मैं यहाँ पे अनशिफ्ट भी रिमूव कर दूंगा. सो टेक एन एग्जांपल, अगर मुझे डेटा डिलीट करना है तो हमारे पास एरे की मेथड्स होती है. तो टोटल हमारे पास 3 मेथड होती है, पॉप, शिफ्ट और स्प्लाइस. इन तीनों का हम यूज कर सकते हैं. सो इफ आई यूज लाइक से console.log, ओके, और सबसे पहले तो मेरे पास ऊपर एरे है मेरा, राइट, आई एम जस्ट हैविंग माय एरे एट द टॉप. अभी मान लेते कि इसमें से मुझे सागर का सॉरी इसमें से मुझे डेटा डिलीट करना है. तो डेटा डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले एक पहली मेथड देखेंगे विच इज कॉल्ड द पॉप. तो हमारे पास पॉप नाम की मेथड होती है. तो अगर मैंने पॉप मेथड अगर यूज की एंड इफ आई जस्ट से console.log and if I print the student list, you will see that it will remove the element. तो पॉप मेथड एंड से डेटा डिलीट करती है. तो इसमें कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं. अगर पॉप अगर मैंने 2 बार अगर यूज किया तो देखिए तो दोनों जो गोविंद के रिकॉर्ड थे वो निकल गए. अगर मैंने पॉप 3 बार यूज की तो 3 रिकॉर्ड पीछे से चले जाएंगे. ओके, सो देखिए नितिन का भी रिकॉर्ड चला गया. सो व्हाट दिस मीन्स गाइस, इट मीन्स दैट कि जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, whenever we perform an operation with the pop method, तो ये एंड से डेटा डिलीट करेगी. तो पॉप मेथड एंड से डेटा डिलीट करती है. पॉप डिलीट्स डेटा फ्रॉम एंड, वो एंड से डिलीट करती है. ओके, इट डिलीट्स द डेटा फ्रॉम द एंड. नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मान लेते कि मुझे अगर एरे की स्टार्टिंग से अगर डेटा डिलीट करें तो कैसे करेंगे हम? तो फॉर दैट वी आर हैविंग अ शिफ्ट मेथड. तो अगर मैं शिफ्ट मेथड यूज करता हूं तो आप देखोगे डेटा डिलीट हो गया है, लेकिन अभी दीपक का डेटा डिलीट हो गया है. सबसे पहले रिकॉर्ड में दीपक था. सो नाउ यू विल सी दैट कि अभी सागर है सबसे टॉप में. तो मैंने अगर शिफ्ट अगर और एक बार यूज की, यू विल सी दैट कि सागर का भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा. एंड इफ आई यूज वन मोर टाइम शिफ्ट, यू विल सी दैट कि नितिन का भी डेटा डिलीट हो जाएगा. राइट, so it means that you can delete a data from the beginning. Okay, so when we say shift deletes the data from beginning. Okay, deletes the data from beginning. Okay, so it can delete the data from beginning. So these are the two methods which are very very important. बट क्या ये दो मेथड्स हम यूज करते? कभी कभी करते, बहुत ही रेयर में. तो लेकिन ज्यादातर क्या होता है, जैसे आपको एक इंडिविजुअल ऐसा रिकॉर्ड डिलीट करना है, यू वांट टू डिलीट सच अ काइंड ऑफ रिकॉर्ड कि वो कहीं पे बीच में है. ओके, तो जैसे मान लेते कि नितिन का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे डिलीट करना है,
ओके, आई वांट टू डिलीट अ रिकॉर्ड ऑफ नितिन। तो कैसे डिलीट करेंगे हम उसे? तो अगर मुझे वो रिकॉर्ड अगर डिलीट करें तो हमें उसका इंडेक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। वी नीड अ इंडेक्स फॉर दैट, वी नीड अ इंडेक्स फॉर दैट। तो अगर मुझे वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे स्प्लाइस मेथड यूज कर सकता हूँ। आई कैन यूज अ स्प्लाइस मेथड। तो स्प्लाइस मेथड में दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है स्टार्टिंग नंबर और दूसरा पैरामीटर होता है डिलीट काउंट, कि कितना रिकॉर्ड डिलीट करना है आपको। तो पहला पैरामीटर क्या होता है? इंडेक्स नंबर मतलब स्टार्टिंग नंबर, एंड सेकंड मतलब कितना डिलीट करना है, तो डिलीट काउंट। तो अगर मान लेते कि मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे नितिन का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वो हुआ 2 इंडेक्स, बिकॉज नितिन का जो रिकॉर्ड है वो इंडेक्स नंबर 2 पे, और उसके बाद अगर मैंने कोमा देके 1 दिया मतलब मुझे एक डेटा डिलीट करना, एंड यू विल सी दैट कि मुझे एग्जैक्टली वही डेटा डिलीट हो जाएगा। सो नितिन डेटा इज रिमूव। अगर मुझे उसके साथ साथ गोविंद का भी पहला रिकॉर्ड डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। तो 2 का मतलब होता है कि इंडेक्स 2 से स्टार्ट करना है और 2 रिकॉर्ड डिलीट करना है। सो इट विल डिलीट अ रिकॉर्ड ट्वाइस। सो इफ आई सेव दिस, अगर मैंने इसे सेव किया, यू विल सी दैट कि ये गोविंद का पहला रिकॉर्ड डिलीट करेगा। अगर मैंने 3 बार किया तो 3 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो इंडेक्स 2 से टोटल 3 रिकॉर्ड डिलीट होगी, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 और इंडेक्स 4। तो देखिए नीचे वाले मतलब नितिन के साथ और 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। सो व्हेन वी यूज अ स्प्लाइस, we can use that one for the deleting of the operation. Okay, so splice method can use to delete a data at particular point. So splice deletes a data at given position, index position. Okay, so these are the 3 methods which we have. Any question, any query? सर एक क्वेश्चन था, अपन स्टार्टिंग से डिलीट करना हो तो फिर -2 -1 ऐसा कर सकते हैं क्या सर? हाँ कर सकते हैं ना। नहीं, मतलब दीपक का अगर रिकॉर्ड आपका अगर मतलब यहाँ अपने पे को आप नीचे से नहीं करना है। सपोज किसी ने बोला कि भाई तुझे स्टार्टिंग से इंडेक्स करना है तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने यहाँ पे अगर -1 दिया तो ये हाँ सर। ऊपर नहीं जाता है, इट विल नॉट गो ऊपर, इट विल नॉट नहीं वर्क इन सर, दैट बट वे। अपने को नीचे का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, अपने को स्टार्टिंग का जो रिकॉर्ड है एक वो डिलीट करना हो तो उस टाइम पे अपन कैसा यूज कर सकते हैं? सो लाइक से यू वांट टू डिलीट इन द दिस वे, कि जैसे मान लेते कि आपके पास एक एरे है, आपके पास एक एरे है, ओके, और जैसे नितिन और सागर आपको डिलीट करने हैं, राइट? तो उस कंडीशन में अगर मान लेते कि लाइक समवन सेज यू, ओके, अगर किसी ने आपको कहा कि मुझे नितिन से ऊपर वाले रिकॉर्ड डिलीट करने हैं, तो जितना वो रिकॉर्ड बोलेगा उतने आपको इंडेक्स माइनस लेके जाना पड़ेगा। ओके, दैट्स मच रिकॉर्ड यू नीड टू गो विद द माइनस। ओके, सो यहाँ पे वो वर्कआउट नहीं करेगा। नो, वी डोंट हैव अ स्लाइस फॉर दैट। स्लाइस का काम अलग होता है, स्लाइस डिलीट करने के लिए यूज नहीं करते। ओके सर। ओके, तो इसमें आप निगेशन में नहीं कर सकते। हाँ, इंडेक्स अगर आप निगेटिव देते तो हाँ निगेटिव सर। इंडेक्स तो वो नीचे से चला आता है। ओके, सो इट विल गो विद द नेगेटिव वन। ओके, नेगेटिव वैल्यूज। तो चलिए हम थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि -1, एंड इफ आई जस्ट से 1, तो ये नीचे से डेटा डिलीट करेगा। अभी अगर मान लेते कि मैं अगर यहाँ पे 2 करता हूं तो शायद से वो नीचे से 2 गोविंद को डिलीट करेगा। नो, इट विल नॉट वर्क इन दैट स्पेस। तो माइनस अगर किया तो ये नीचे से डिलीट करना चालू कर देता है, बट ये उस पर्टिकुलर इंडेक्स से आगे ही डिलीट ओके करेगा, सर। इट विल नॉट गो इन द रिवर्स ऑर्डर। ओके,
तो आपको ओके अगर सर। ऐसा बोला है कि नितिन के ऊपर एक रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो जो नितिन का इंडेक्स रहेगा उसको और एक से आपको माइनस करना पड़ेगा. यू नीड टू स्टार्ट इट वन, देन यू कैन जस्ट से टू. तो फिर वो सागर और नितिन दोनों का डेटा डिलीट करेगा. ओके ओके सर। फाइन. यस, और कोई क्वेश्चन है किसी के पास? सर यस वो अभी अपने बॉटम से डिलीट करना है तो माइनस इंडेक्स यूज किया बराबर। यस 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 हम लोग के पास अभी फिफ्थ सिक्स्थ रिकॉर्ड है ना। यस यस. नहीं, तो 5 तो रिकॉर्ड है. पांच पांच में से अगर मेरे को एकदम बॉटम वाला करना है तो इंडेक्स में मैं -1 दूंगा। यस और उसका करंट इंडेक्स मीन्स वो 1 दूंगा आगे जाके फिर बराबर। यस. डिलीट नहीं, काउंट 1 होगा। हाँ, वो डिलीट काउंट 1 हो गया. सो ये 1 हुआ नीचे से डिलीट करेगा एग्जैक्ट. फिफ्थ वाला हुआ और फिफ्थ के साथ मुझे अभी फिफ्थ फर्स्ट है ना तो और एक काउंट बढ़ाना है तो 2 करूंगा तो फोर्थ वाला भी डिलीट होगा ना। नहीं 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 नहीं, वो रिवर्स नहीं जाता है. मैं वही बता रहा था आपको. वो रिवर्स क्या नहीं। करेगा, लास्ट इंडेक्स से ही आगे डिलीट करने की कोशिश करेगा, बट वो होता ही नहीं है. तो यहाँ पे आपका डिलीट काउंट वर्क नहीं होगा. एक ही बैक। डिलीट हो सकता है. हाँ, अगर आपने यहाँ पे -2 किया, तो ओके। -2 मतलब टोटल हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं? 2 5। रिकॉर्ड है गोविंद के. तो -2 ये 3 पकड़ेगा और यहाँ से 2 रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे. वैसे ओके. काउंट। यस. अगर मुझे नितिन तक जाना है तो यहाँ पे मुझे -3 करना पड़ेगा फिर. तो ये रिवर्स से -3 पे आएगा, मतलब -1, -2 और -3. और यहाँ से वो रिकॉर्ड डिलीट करना शुरू कर देगा. जहाँ से वो रिवर्स करना है तो वो वाला इंडेक्स पहले ही कैच करना पड़ेगा यस फिर यस आगे जाके हमें उसके काउंट बढ़ाना पड़ेगा। यस यस यस. और बट एक निगेटिविटी में मत जाइए, बिकॉज इट्स वेरी हाँ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. अगर बराबर। आप इंडेक्स का अगर लेते हो वैल्यू, दैट्स अ गुड थिंग. ओके. कोई कुछ नहीं था ये ऐड हमने डेटा किया उसमें सिंगल रिकॉर्ड ऐड किया है ना अभी। यस यस. उसमें मल्टीपल आरे का लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं ना. उसके लिए मैं आपको दूसरा एक वे बताऊं. ओके ओके, ओके। अगर आपके पास एक पुरानी लिस्ट है, ओके, और जैसे कि उसमें 50 रिकॉर्ड्स है, और आपके पास एक नया एरे आया है जिसमें आपके पास नई लिस्ट है, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर सकते हैं उसके लिए. ओके, या फिर कॉनकैट मेथड यूज कर सकते हैं. ओके. तो स्प्रेड ऑपरेटर सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है. मैं आपको वही बताऊंगा that how to use a spread operator if you want to merge two arrays. Okay. ओके। Yeah. Yeah. So the question is like, say we are having a fruits, we slice. Okay, नहीं ये तो कट करेगा. एक्चुअली स्लाइस मेथड कट्स array और वो कट करके आपको देता है. ओके, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो. मैं बताऊंगा वो आपको. ओके. स्लाइस मेथड डिलीट नहीं करेगी. इट डजंट डिलीट. स्लाइस मेथड आपके एरे को कट करके नया एरे करती है. ओके. दैट वी विल डिस्कस. डोंट वरी. सो यस, तो एवरीवन इज क्लियर विद द डिलीट फंक्शनैलिटीज. तो डिलीट करने के लिए हमारे पास पॉप, शिफ्ट और स्प्लाइस मेथड होती है. एवरीवन इज क्लियर विद दिस? यस सर। ओके फाइन. गुड. ओके. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट गाइस. तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि एरे में हम डेटा रीड कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, डेटा डिलीट कर सकते हैं. चलिए अभी डेटा अपडेट करके देखते हैं. मान लेते हैं कि आप एक फॉर्म पे काम कर रहे हैं. ओके. और आपके पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है जो आपने टेबल में प्रिंट की, जिसमें से अभी सागर के मार्क्स मुझे अपडेट करने. आई वांट टू अपडेट द सागर्स मार्क्स. तो वो कैसे कर सकते हैं हम? चलिए इसे समझते हैं अभी. सो टू अपडेट अ डेटा यू कैन यूज अ स्प्लाइस मेथड. अगर मुझे अपडेट करना है तो हम स्लाइस मेथड का यूज करेंगे. तो अपडेट
वी विल यूज अ स्लाइस मेथड। तो एरे को आप अपडेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अ स्लाइस मेथड, एंड दैट इज अ मैजिकल थिंग विच एरे हैज। तो चलिए कैसे अपडेट करते हैं पहले समझते हैं। अपडेट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली उस इंडेक्स पोजीशन पे जाके भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मुझे सागर का डेटा अपडेट करना है। तो अभी अगर आपने देखा, सागर का जो रिकॉर्ड है वो है इंडेक्स 1 पे। तो जैसे 23 से मुझे उसको 50 मार्क्स देने हैं, तो यहाँ पे मैं उसे अपडेट कर सकता हूँ। कैसे? आई कैन जस्ट से स्टूडेंट लिस्ट ऑफ इंडेक्स 1, और फिर मैं उसके मार्क्स अपडेट कर सकता हूँ, जैसे कि मार्क्स 50। सो यू विल सी दैट इट विल बी गेट अपडेटेड। ये एक तरीका है डेटा अपडेट करने का। ये बहुत ही सिंपल और शॉर्टकट तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है कि आप सागर का वो पुराना रिकॉर्ड ले, लाइक से where अंडरस्कोर स्टूडेंट इक्वल्स टू, लाइक से अपडेट स्टूडेंट ओके। सागर का वो पुराना रिकॉर्ड ले, इसे स्टूडेंट ऑफ लिस्ट ऑफ 0 ऑफ 1। तो ये आपको एक इंडिविजुअल सागर का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उस रिकॉर्ड में आप क्या करें, चेंजेस करें। सो लाइक से अपडेट ऑफ स्टूडेंट डॉट मार्क्स इक्वल्स टू 50। और एक बार ये हो गया, फिर आप स्टूडेंट लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं डॉट स्प्लाइस करके। तो पुराना वाला रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो वो कौन सा इंडेक्स है हम सागर का यूज कर रहे हैं, एरे ऑफ 1। तो यहाँ पे मैं दूंगा कि इंडेक्स 1 होना चाहिए, डिलीट भी होना चाहिए, और उसके बाद ये नया वाला रिकॉर्ड उसमें ऐड होना चाहिए। तो हम डिलीट भी कर रहे हैं और डेटा ऐड भी कर रहे हैं। तो तीसरा पैरामीटर डेटा ऐड करने के लिए होता है। तो एक्चुअली वो अभी रिप्लेस करेगा, एंड यू विल सी कि सागर का रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। तो पहले वाले को मैं कमेंट कर दूंगा। सो सी, तो हम स्प्लाइस से डेटा अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, सो यू विल सी दैट कि यहाँ पे सागर का रिकॉर्ड अपडेट होगा। अगर मुझे सागर का नाम सागर कुमार करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, जैसे कि अपडेट स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल्स टू सागर कुमार। और मैंने अगर इसे सेव किया, नाउ दैट स्टूडेंट नेम इज सागर कुमार, और उसके मार्क्स भी हमने चेंज कर दिए। तो जब हम स्प्लाइस यूज करते हैं तो स्प्लाइस दो चीजों के लिए यूज होती है। डेटा ऐड करने के लिए भी हम कर सकते हैं, डेटा ऐड करने के लिए भी कर सकते हैं, डेटा अपडेट करने के लिए भी कर सकते हैं। मैंने अगर कहा कि लाइक से 1, यहाँ पे 1 का मतलब होता है कि ये पहला इंडेक्स है, स्टार्टिंग इंडेक्स। सो फर्स्ट पैरामीटर इज अ स्टार्ट इंडेक्स। सेकंड पैरामीटर इज डिलीट काउंट। तो वहां का रिकॉर्ड वो डिलीट कर देगा। एंड थर्ड पैरामीटर इज ऐड डेटा। तो उसी इंडेक्स पे वो डेटा ऐड करेगा, मतलब उसी इंडेक्स का डेटा डिलीट करेगा और उसी इंडेक्स पे वो फिर से वो ऐड करेगा। तो इसे हम रिप्लेसमेंट कहेंगे। ओके, ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो गया, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अपडेट। यस, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नो सर। तो हेलो। अभी इनमें से कौन सा तरीका आपको यूज करना है, पहले वाला या दूसरे वाला, वो टोटली आप पे डिपेंड है। ओके, आई हैव जस्ट शोन यू द वे। इट्स नॉट कंपलसरी कि आप स्प्लाइसी मेथड यूज कीजिए। ओके, इट्स नॉट कंपलसरी, बट यस देयर इज अ वे। ओके, हेलो यस। सर, वो स्प्लाइस अभी हम कर रहे थे, अगर दो पैरामीटर यूज करेंगे, स्टार्ट इंडेक्स और डिलीट काउंट वाला, तो डायरेक्टली डिलीट कर रहे हैं, बराबर। यस यस। अगर उसमें हम थर्ड पैरामीटर ऐड करते हैं विद चेंजेस की न्यू डेटा, उस टाइम वो डेटा डिलीट नहीं होता है, अपडेट हो रहा है ना खाली। हाँ नहीं, आप वो एक्चुअली रिप्लेस हो रहा है, मतलब ये डिलीट भी कर रहा है और उसी जगह पे नया डेटा इंसर्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन डिलीट पे अभी उसमें वो जैसे सागर का हम डेटा इंडेक्स थ्रू कैच कर रहे हैं, बराबर। हम्म। तो
उसमें 2 चीज़ हमने ऐड की, मार्क्स और नेम, और उसमें और एक चीज़ था, रोल नंबर शायद। वो तो डिलीट होता था, फिर रोल नंबर भी डिलीट होता था ना? नहीं 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 नहीं, एक्चुअली हमने क्या किया, सागर का जो रिकॉर्ड था एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, बराबर। तो वो डिलीट भी हो गया तो भी हमारे पास वेरिएबल में वो डेटा अवेलेबल है, तो उस वजह से वो आपको यहाँ पे सेव वैल्यू किया था वेरिएबल में, उसकी वजह से वो डिलीट होने के बाद फिर से अपडेट हुआ। यस यस यस। सो इफ आई जस्ट ओके, प्रिंट दिस ओके। अपडेट स्टूडेंट, तो आपको दिखेगा दैट इट्स देयर, सी सागर रिकॉर्ड इज देयर। ओके, वही मतलब मैं डिलीट होने के बाद वो रोल नंबर तो हमने ऐड नहीं किया था, वो कहाँ नहीं से नहीं आया? वो एक बराबर। ये जो सिनेरियो, ये एक तरीका है, आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं चीजों अपडेट कर लिया, अपने स्टोर किया, फिर उसमें अपडेट कर रहे, फिर वो प्रिंट हुआ वो इंडेक्स पे जाके। को। यस ओके, ओके। यस, एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेरी? नो। ओके फाइन। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मेथड। ओके, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम डेटा अपडेट कर सकते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है कि लाइक यू विल गेट अ सिनेरियो कि जहां पे आपको डेटा सर्च करना है। ओके, कभी कभी होता है कि हमें डेटा सर्च करने की जरूरत पड़ती है। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है जिसमें से मुझे डेटा सर्चिंग करना है। ओके, आई वांट टू सर्च डेटा, तो हम कैसे डेटा सर्च कर सकते हैं? सो टू सर्च डेटा वी हैव टू मेथड्स, हमारे पास दो मेथड होती है, एक होती है फिल्टर और दूसरी होती है फाइंड। तो फिल्टर मेथड से आप वो डेटा डिलीट फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड मेथड से भी हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक रिकॉर्ड है। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे जिसका रोल नंबर लाइक से 25 है, नॉट 25, 28 है, मुझे उसे फाइंड करना है। ओके, या लाइक से 27 है, जिसका रोल नंबर 27 है, मुझे उसे फाइंड करना है। ओके, जिसका रोल नंबर 27 है, मुझे उसे फाइंड करना है। तो हमारे पास फाइंड दो रिकॉर्ड है, एक नितिन का और एक गोविंद का है, एक ही रोल नंबर की। तो जैसे मान लेते कि मुझे रोल नंबर से सर्च करना है, सो आई विल जस्ट से रोल, लाइक से आई विल से सर्च, सर्च, सर्च वैल्यू। तो जैसे यहाँ पे मैं 27 पास कर रहा हूँ, आई एम जस्ट पासिंग 27 एज अ सर्च वैल्यू। तो सबसे पहले हम फाइंड इंडेक्स, फाइंड से देखेंगे। सो वी कैन यूज अ मेथड ऑफ एरे कॉल्ड एज अ फाइंड। तो इस फाइंड में भी हमें कॉल बैक फंक्शन ही मिलता है गाइस, उसे प्रेडिकेट कहते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें कॉल बैक फंक्शन ही मिलेगा, इसमें भी हमें वैसा ही पैटर्न मिलता है, वैल्यू आती है और इंडेक्स आता है। अभी हमारे हमारे लिए इंडेक्स का कोई यहाँ पे वैल्यू है नहीं, तो हम इंडेक्स को अवॉइड करेंगे। सो इफ आई यूज console.log, इफ आई जस्ट ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू, यू विल सी दैट कि मुझे सारी वैल्यूज मेरी प्रिंट हो जाएगी। मुझे इसमें रोल नंबर को सर्च करना है। सो अगर मैंने यहाँ पे डॉट रोल नंबर अगर लिखा, तो मुझे सिर्फ रोल नंबर मिलेंगे, राइट? सो जो रोल नंबर है वो मुझे मैच करने। तो फाइंड में एक्चुअली क्या होता है, हम क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, क्राइटेरिया, फाइंड का क्राइटेरिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि वैल्यू डॉट रोल नंबर जो है वो इक्वल्स टू होना चाहिए सर्च वैल्यू से, इट मस्ट बी इक्वल्स टू। अगर ये इक्वल्स टू होता है तो प्लीज रिटर्न कीजिए। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये दो वैल्यू अगर कंपेयर होती है तो रिटर्न करना। ओके, ओनली ऑन द ट्रूथ, अगर ये कंपेयर होती है तभी इसे रिटर्न करना, एल्स रिटर्न मत करना। अभी अगर हम फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं तो मैं उसे कलेक्ट कर सकता हूँ, हमने देखा था कि रिटर्न फंक्शन रिटर्न भी करता है, तो हम उसे कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्च रिजल्ट, and you will see that search result will give me the search result. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च रिजल्ट। सो यू विल सी दैट कि मुझे नितिन का रिजल्ट मिल गया। ओके, सो जब हम फाइंड मेथड यूज करते हैं, फाइंड हमें रिजल्ट देगा।
find methods gives us a result. अभी 27 रोल नंबर कितने कैंडिडेट के थे गाइस? कितने कैंडिडेट के थे 27 रोल नंबर? 2 कैंडिडेट सर। 2 कैंडिडेट के थे, राइट? इट वाज ऑफ 2 कैंडिडेट, बट यहाँ पे आपको सिर्फ नितिन का रिकॉर्ड मिला। क्यों? बिकॉज फाइंड में क्या होता है, फाइंड आपको एक ही वैल्यू रिटर्न करती है। क्या करती है फाइंड जो होती है वो एक ही वैल्यू रिटर्न करती है। ओके, सो इट रिटर्न्स ओनली वन रिकॉर्ड। वो एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करेगी। हमेशा याद रखना, फाइंड एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करती है। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मान लेते कि यहाँ पे मैं रोल नंबर 50 दे रहा हूँ जो नहीं है, तो रिटर्न में फिर फाइंड क्या रिटर्न करेगी? अगर रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो क्या आ सकता है? Yes, ये anyone? Not a number. Not a number. Okay. नहीं तो undefined. Yeah, undefined आएगा. So if the record is not found, we get undefined. We get undefined. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लेते कि आपको अगर रिकॉर्ड नहीं आता है तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करता है। ओके, तो हमेशा याद रखिए, फाइंड मेथड ऑलवेज रिटर्न्स वन रिकॉर्ड ओनली। ये एक ही रिकॉर्ड रिटर्न करती है, और अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करती है। ओके, बिकॉज उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ओके, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अगर मान लेते हैं कि अगर अभी मेरे पास 27 था, तो मुझे एक ही रिकॉर्ड आ रहा था, लेकिन हमारे एरे में 2 रिकॉर्ड है। तो अगर आपको 2 रिकॉर्ड चाहिए, मतलब आपको फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करने, जिसे गूगल पे होता है। तो अगर आप गूगल की साइट पे गए और आपने अगर HTML अगर टाइप किया, तो आपको HTML के सजेशन आएंगे। तो कितने सजेशन आते हैं आपको? टिपिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सजेशन आते हैं आपको एट ए टाइम। गूगल पे कितने सजेशन आते हैं? 10 सजेशन। तो हमें भी वैसा ही चाहिए कि अगर मान लेते मेरे अगर स्टूडेंट अगर 27 रोल नंबर के अगर 2 है, तो वो 2 मिलने चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ फाइंड वी कैन यूज अ फिल्टर मेथड। इंस्टेड ऑफ फाइंड वी कैन यूज अ फिल्टर मेथड। तो यहाँ पे हम फिल्टर मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए लॉजिक वही है पूरा की पूरा, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। एंड द मैजिकल थिंग इज दैट कि फिल्टर मेथड आपको रिटर्न में एरे देगा, और वो सारे के सारे मैचेबल वैल्यूज देगा आपको। सो अगर आपको मल्टीपल सर्च अगर चाहिए, तो आप एरे की फिल्टर मेथड यूज करेंगे। सो फिल्टर मेथड क्या करती है? फिल्टर मेथड गिव्स यू मल्टीपल रिकॉर्ड्स, ऑल द मैचेबल रिकॉर्ड्स। फिल्टर क्या करती है? आपको सारे मैचेबल्स रिकॉर्ड्स देती है। सो फिल्टर मेथड गिव्स us all the record, all match records, match results, and it returns a array. ओके, बट अगर मान लेते कि मैंने यहाँ पे 50 नंबर अगर रोल नंबर दिया और वो अगर डेटा ही नहीं है, तो फिर रिटर्न में क्या आ सकता है? यस, क्या आ सकता है रिटर्न में? अगर रिकॉर्ड Undefined. फाइंड आउट नहीं हो तो क्या हो सकता है? Undefined, sir. ओके, अनडिफाइन। और कुछ? एनी मोर थिंग? और कुछ हो सकता है क्या? No idea, sir. ओके Not a sure. ओके ओके, सो बेसिकली हमें रिटर्न में एम्प्टी एरे आता है अगर फाइंड नहीं होता है।
तो फिल्टर में अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है, वी गेट एन एम्प्टी एरे। ओके, हमें एम्प्टी एरे आता है। ओके सर। तो फाइंड मल्टी सर्च के लिए यूज होता है, सॉरी फिल्टर मल्टी सर्च के लिए यूज होता है, और फाइंड जो है वो सिंगल सर्च के लिए यूज होता है। फाइंड में अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो अनडिफाइन आता है, फिल्टर में अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो वो एम्प्टी एरे रिटर्न करता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड फिल्टर, और ये दो ही मेथड हम यूज करते हैं सर्चिंग के लिए। ओके, अभी अगर आप अगर jQuery से अगर अवेयर हो, jQuery की एक बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसका नाम है डेटा टेबल्स। कभी यूज किया किसी ने हाँ डेटा टेबल्स? यस नो सर। ओके, सो ये जो डेटा टेबल है ये उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। आप यहाँ पे सर्चिंग कर सकते हैं, जैसे कि मुझे टोक्यो से सर्च करना है, सो इफ आई जस्ट से TOK, तो मुझे सारे टोक्यो के रिजल्ट आएंगे। अगर मैंने 33 अगर टाइप किया तो मुझे 33 से रिजल्ट आएंगे। जहां जहां पे भी 33 या फिर 3 है तो मुझे वो रिकॉर्ड आएगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे अकाउंटेंट अगर सर्च किया तो मुझे अकाउंटेंट के एसोसिएट, मतलब वो मैच करता है। तो ये बेसिकली मल्टी रिकॉर्ड देता है, तो ये फिल्टर ऑपरेशन होता है। इट गिव्स यू अ फिल्टर ऑपरेशन। अभी आपने मुझे स्लाइस बोला है, बेसिकली स्लाइस यहाँ पे पेजिंग नेशन के लिए यूज हो रहा है। तो आपको अगर एक एरे के अगर सिर्फ कितने रिकॉर्ड चाहिए मुझे, जैसे कि 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो पहले पेज पे आपको 10 रिकॉर्ड दिखेंगे क्योंकि वो स्लाइस कर रहा है। दूसरे पेज से आपको 11 के बीच में देखेंगे, फिर 21 से 30 के बीच में। तो ये बेसिकली स्लाइस ऑपरेशन होता है। ओके, और आगे चल के हम सॉर्ट देखेंगे कि हम नंबर से या फिर स्ट्रिंग से सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द सॉर्ट कम्स इनटू द पिक्चर। ओके, सो डेटा लिस्ट बहुत ही बेहतरीन वे है चीजों को समझने के लिए। डेटा टेबल्स नॉट डेटा लिस्ट, ये बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत सारी वेबसाइट इसका यूज भी करती है। ओके, सो आज के सेशन में हमने जो जो मेथड्स देखी उनका एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि एक एरे को हम इंडिविजुअली भी रीड कर सकते हैं, एरे की वैल्यू बाय यूजिंग अ सिंगल वैल्यू दैट इज द इंडेक्स। लेकिन अगर मुझे सारी वैल्यूज रीड करनी है तो हम फॉर ईच का यूज करेंगे। Also we have for in and for of, but we typically use it only for certain purposes. उसके बाद हमने ये देखा that we can add a data by using the push and shift, यस सर। and sorry, push and unshift, and then we have just seen that we can delete a data by using pop, shift and splice. After that we have seen to update a data we use a splice method, or a simplest way is to hook that particular values index and then change it. दो तरीके हैं. And then the last we have seen that is a find and filter. So find will return only one record, filter will return multiple records. Okay. Now in the next session we are going to see the rest method, map, join, reduce or sort and includes. So हम next method देखेंगे. And also we are going to see the rest part, that is the object methods, date methods and math method. Once we complete all the method, that will complete your entire fundamentals of JavaScript. ओके, ये आपके जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल्स पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा। एंड देन वी आर गोइंग टू सी इन द डेवलपमेंट जोन। तो फिर हम डेवलपमेंट करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? नो सर। इसमें नहीं है ये, अभी जो हमने डेटा फिल्टर किया वहाँ पे 50 के 2 रिकॉर्ड देना। सॉरी तो नहीं अगर थे, वो रोल नंबर नहीं थे, वो मार्क्स थे। अच्छा, नहीं हाँ, अगर नहीं कोई डेटा है ऐसा, अभी मुझे हम लोग क्या फिलहाल सर्च कर रहे हैं रोल नंबर पे ना, अभी रोल नंबर 50 था, ऐसे 2 रोल नंबर बाय चांस आ गए। मीन्स एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट ये एग्जांपल में 50 है, 500 है और 5000 है, तो उस सिनेरियो में वो तीनों रिजल्ट डिस्प्ले होगा क्या? नहीं, यहाँ पे आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज नहीं कर रहे ना,
हम ऐसे नहीं बोल रहे जिसकी स्टार्टिंग m से है वो दिखनी चाहिए, ओके हम या ये फिर जिसकी स्टार्टिंग 5 से है वो दिखनी चाहिए। हम रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं यूज कर रहे, हम एग्जैक्ट मैच चेक कर रहे हैं, एग्जैक्ट मैच। ओके 50 तो कैसे अगर आप प्रॉपर हाँ, अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन करनी है तो वो अलग चीज होती है। रेगुलर एक्सप्रेशन से भी आपको डेटा मिलेगा, ओके, तो वो थोड़ा अलग होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके ओके, मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगा जहाँ पे आप रेगुलर ओके फाइन ओके सर। fine. Okay guys, so I'm just stopping the recording.